السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ پہلی بات تو میں آپ کو اس میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے بہت ہی لمبا سبق ہے، اور لیکن کیا ہے، اس میں ہم کو پورا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تو سوچتا ہوں کہ ان شارٹ آپ کو بتا دوں، ایک بار پڑھ کے اس میں کیا ہے، تاکہ آپ کو بھی، آپ کے ذہن میں بھی یہ بات گھس جائے، سمجھے۔ تو دیکھیے، آج جو ہمارا سبق ہے یہاں سے، فالدلیل الکلی وهو النوع العام من الادلة تندرج فيه عدة جزئیات۔ دلیل کلی وہ ہے جس میں وہ ایک عام نوع ہے جس میں بہت سے دلیل کیا ہے، دلیل کے اندر جزیات داخل ہوتی ہے، بہت سے دلیل کے اندر جو ہے جزیات، جیسے امر، نہی، عام، مطلق، اجماع الصریح، اجماع السکوتی، قیاس منصوص علی علتہ والقیاس المستنبط علتہ، ایسا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں، فالامر کلی یندرج تحت جمیع الصیغہ۔ تو امر کلی وہ ہے جس کے اندر تمام صیغہ جو ہے داخل ہوتا ہے، جو امر کے صیغہ پہ آیا ہے۔ والنہی وہ ہے جس کے اندر تمام صیغہ داخل ہوگا جو نہی کے صیغہ پہ وارد ہوا ہے۔ اسی طرح فالامر، تو امر جو ہے دلیل کلی، وہ کیا ہو گیا، دلیل کلی ہو گیا۔ والنص الذی ورد علی صیغۃ الامر، جو نص صیغہ امر پہ وارد ہوا ہے قرآن میں، وہ دلیل کلی ہو گیا۔ اسی طرح کیسے، فالامر دلیل کلی والنص الذی ورد علی صیغۃ الامر دلیل جزئی۔ تو امر جو ہے وہ دلیل کلی ہو گیا، اور جو امر کے صیغہ پہ وارد ہوا ہے وہ دلیل جزئی ہو گیا۔ والنہی، اسی طرح نہی دلیل کلی ہے، اور جو نہی کے صیغہ پہ وارد ہوا ہے وہ دلیل جزئی ہو گیا۔ اما الحکم الکلی، اب حکم کلی، فهو النوع العام من الاحکام التي تندرج فيه عدة جزئیات۔ اور حکم کلی، دلیل کلی بتا رہے تھے، اب حکم کلی وہ ہے جو ایک عام نوع ہے جس کے اندر بہت سے جزیات کیا ہے، احکام کے ایک نوع، احکام میں سے ایک عام نوع ہے جس کے اندر بہت سے جزیات داخل ہوتے ہیں، جیسے مثل الایجاب والتحریم والصحت والبطلان۔ فالایجاب حکم کلی، تو ایجاب جو ہے وہ حکم کلی ہو جائے گا۔ یندرج فیہ ایجاب، اس میں داخل ہوگا ایجاب الوفاء بالعقود، اگر کسی کے ساتھ کوئی اگر عقد کیا ہے تو اس کو پورا کرنا واجب ہے۔ اسی طرح ایجاب الشہود فی الزواج، اور شادی میں گواہ کا ہونا بھی واجب ہے۔ اسی طرح وہ ایجاب ای واجب، کوئی سا بھی ہو۔ والتحریم حکم کلی ینجر فی تحریم، جو حکم کلی، تحریم جو ہے حکم کلی ہے جس کے اندر تحریم داخل ہوگا، حرمت، جیسے تحریم الزنا، زنا حرام ہے، وہ چوری کرنا حرام ہے، وہ کوئی سا بھی تحریم ہو سکتا ہے۔ وہ اسی طرح حقد الصحت والبطلان۔ فالایجاب، تو ایجاب جو حکم کلی ہوگا، وہ ایجاب فعل معین، اور کوئی خاص فعل جس کو کرنا واجب ہو وہ حکم جزئی ہو جائے گا۔ جس طرح اوپر ہم بتائے کہ امر دلیل کلی ہے، اور جو امر کے صیغہ پہ ہے وہ دلیل جزئی ہو گیا۔ اسی طرح یہاں ایجاب جو ہے مطلقاً حکم کلی ہے، اور ایک خاص فعل کو کرنے کا جو ہے وہ حکم جزئی ہو جائے گا۔ والاصولی، اور ہم شروع سے بتائے کہ اصولی جو ہے جزیات پہ کیا نہیں کرتا، کبھی بھی بحث نہیں کرتا جزیات کے دلیل پر، بلکہ وہ فقہی لوگ کرتے۔ دیکھو، والاصولی اصولی لا یبحث فی الادلۃ الجزئیہ ولا فیما تدل علیہ من الاحکام الجزئیہ، اور نہ ہی وہ احکام جو جزئیت پہ دلالت کرتا ہے اس پہ بھی بحث نہیں کرتا ہے۔ وانما یبحث فی الدلیل الکلی وما يدل علیہ من حکم کلی لیضع قواعد کلیہ لدلالۃ الادلہ۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کلی پہ اس لیے بحث کرتا ہے تاکہ ایک قواعد کلیہ کو رکھے جس سے دلیل کی دلالت بھی ہو جائے۔ کہ یطبق الفقیہ علی جزئیات الادلہ، تاکہ ایک فقیہ جو ہے اس جزیات کے اوپر دلیل کو تطبیق کر سکے، لاستثمال الحکم التفصیلی منہا، تاکہ اس سے ایک تفصیلی حکم کو کیا کر سکتے، توڑ سکے، ایک تفصیلی حکم کا ثمرہ اسے مل سکے، سمجھے نا۔ تو یہ کہنے کا مقصد ہے کہ اصولی جو ہے نہ تو جزیات پہ، نہ تو اس کے حکام کے جزیات پہ بحث کرتا ہے، بلکہ وہ کلی پہ، دلیل کلی پہ بحث کرتا ہے، تاکہ اس سے ایک قواعد کلیہ کو وہ وضع کر سکے، قواعد کلیہ کو لا سکے، تاکہ فقیہ لوگ جو جزیات کے اوپر بحث کر سکے اس سے۔ والفقیہ لا یبحث فی الادلۃ الکلیہ ولا فیما تدل علیہ، اسی کا اپوزٹ ہے، وانما یبحث فی الدلیل الجزئی وما يدل علیہ من حکم جزئیہ۔ الغایۃ المقصودۃ بہما، ان دونوں سے ہمارا الٹیمیٹ گول کیا ہے؟ الغایۃ
अलगायतुल मक़सूदा मिन इल्मिल फ़िक़्ह हिय तत्बीकुल अहकाम शरिया अला अफ़आलिन नास व अक़वालिहिम, ताकि एक अहकाम शरिया को क्या करना, लागू करना लोगों के अफ़आल पे, लोगों के काम पे, लोगों के कौल पे। फल फ़िक़्ह व मर्दउल क़ादी फ़ी क़दाई, तो फ़िक़्ह जो है कादी का, फ़िक़्ह में हमारा सोर्स क्या होगा, कादी होगा और उसकी कदा होगी। उस तरह मुफ्ती होगा और उसका फतवा होगा, वल मुफ्ती फ़ी फ़तवा है व मर्ज़ कुल्ल मुकल्लफ़िन। इसी तरह हर मुकल्लफ़ का सोर्स लिमारिफ़तिल हुक्म शरइया, ताकि वो हुक्म शरई को जाने, फ़ीमा यसदरु अन्हु मिन अक़वालिन व अफ़आल, जिससे अक़वाल और अफ़आल सादिर होता है, वो सबको जाने। व हादिही हियल गायतुल मक़सूदा, और यही अल्टीमेट गोल है, मिन कुल्लिल क़वानिन, हर क़वानीन से, फ़ी अय्यति उम्मा, चाहे कोई भी उम्मत में हो, हर क़वानीन का एक अल्टीमेट गोल होता है। फ़इन्नहा ला युक़सदु मिनहा, फ़इन्नहा बेशक उस क़वानीन से, ला युक़सदु मिनहा उससे इरादा नहीं किया जाता, इल्ला तत्बीक़ु मवादिहा, ताकि उसके मवारिद को, मवाद नहीं है मवारिदिहा, उसके सोर्सेस, उसके आने की जगह को क्या कर सके, तत्बीक कर सके, तदबीर व हकामिया अलन्नास, ताकि लोगों पे उस हकाम को लागू कर सके, व अक़वाल उनके अक़वाल पे, व तारीफ़ कुल्ल मुकल्लफ़ फ़ीमा यजिबु अलैहि, और हर मुकल्लफ़ को तारीफ़ जो उसके लिए वाजिब है, वमा यहरिमु अलैहि, और जो उस पर हराम है। अम्मल गायतुल मक़सूदा मिन इल्म उसूल फ़िक़्ह, अब इल्म उसूल फ़िक़्ह का गायत, उसका अल्टीमेट गोल क्या है, सुनिए। फ़हिय तत्बीक़ु क़वाइदिही, वो अपने कवायद को क्या करता है, लागू करता है, व नज़रियात, और उसके नज़रिया को भी, उसके अफ़कार को भी, अला अदिल्लति तफ़सीलिया, एक पूरी तफसीली दलील पे, लितवस्सुल इला अहकाम शरिया अल्लती तदल्लु अलैहा बिक़वाइद व बुहूस। हाँ देखिए, तो उसके कवायद को लागू करता है, नज़रियात को लागू करता है तफसीली दलील पे, ताकि लितवस्सुल इला अहकाम शरिया, एक अहकाम शरिया तक पहुँच सके, अल्लती तदल्लु अलैहा, जिस पे मतलब अहकाम शरिया क्या कर रही है, दलालत कर रही है। फ़बिक़वाइदिही, उसके कवायद से व उसके बहुत से हम क्या कर सकते हैं, नुसूस शरिया को समझ सकते हैं। वयअरफ़ु मा तदल्लु अलैहि मिनल अहकाम, और जो भी अहकाम दलालत करते वो भी जान सकते। वयअरफ़ु मा यज़ालु बिही ख़फ़ाउल ख़फ़ी मिनहा, और उससे ये भी जान सकते कि यानी एक ख़फ़ी में क्या ख़फ़ा है। वमा यरजु मिनहा इंद तारुद बाद व विवाद, और उस ये भी हमको वमा युरज्जिहु, और तरजीह दे सकते मिनहा उस कवायद से, उस के इंद तारुदी बादहा विवाद, बाद से जो तारुज़ होता है उसको हम तरजीह भी दे सकते। वह भी कवाइदिही व बुहूसिही, और उसके कवायद से, उसके बहुत से, यस्तंबितुल हुक्मु बिल क़ियास और इस्तिहसान और इस्तिसाब, और हम क्या कर सकते हैं, उससे क़ियास से, इस्तिहसान से और इस्तिसहाब से हम क्या कर सकते, हुक्म को इस्तिंबात कर सकते। और गैरिया फ़िल वाक़ियति लती लम यरदु नस्सु बिहुक्मिया, और ऐसे वाक़या जिस पे नस नहीं आया उसको भी हम क्या कर सकते, इस्तिंबात कर सकते। वह बिक़वाइदिही व बुहूसी यफ़हमु मस्तंबतुल अइम्मतुल मुज्तहिदीन हक़्क़ फ़हमी, और हम उसके कवायद से, उसूली के कवायद से, उसके बहुत से हम ये समझ सकते हैं कि जो अइम्मा मुज्तहिदीन ने जो सब कोशिश की है, समझे ना, बहुत है। वयुवाज़िनु बैन मज़ाहिबिल मुख्तलिफ़ फ़ी हुक्मिल वाक़ियतिल वाहिदा, और एक ही वाक़या में हम क्या कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के दरमियान मुआज़ना कर सकते। लिअन्न फ़हमल हुक्मी अला वजही वल मुआज़नतु बैन हुक्मैनि मुख्तलिफ़ैन ला यकुनु इल्ला बिवुक़ूफ़ि अला दलील हुक्मी, तो हम किसी भी दो हुक्म, मुख्तलिफ़ हुक्म के दरमियान मुआज़ना नहीं कर सकते, इल्ला सिवाय हमको क्या है, हमारे पास दलील होना है। ववजहु इस्तिदादिल हुक्म मिन दलीली वला यकुनु हादा इल्ला बिइल्मि उसूल फ़िक़्ह फ़हुव इमादुल फ़िक़्हिल मुक़ारन, तो ये हम सिर्फ इल्म उसूल फ़िक़्ह के ही ज़रिए जान सकते हैं, समझे। अब देखिए नशात बता रहा है, नशअतु कुल्लु मिनहा व ततव्वुरुहु, नशअत अहकामुल फ़िक़्ह मा नशअत इस्लाम लिअन्नल इस्लाम हुवा मजमूअतुम मिनल अक़ाइद वल अख़लाक़ वल अहकामुल अमरिया। आप जानते हैं कि ये अहकामुल फ़िक़्ह जो है इस्लाम के ही साथ उसकी भी नशअत हुई है, और इस्लाम जो है अक़ाइद, अख़लाक़ और अहकाम अमलिया का मजमुआ है। वक़द कानत हाज़िल अहकामुल अमरिया फ़ी अहद रसूल, ये अहकाम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक मुकव्वन था, यानी मतलब एक तत्बीक किया हुआ था। मिनल अहकाम लती वरदत फ़िल कुरान, जो कुरान में आया, व मिनल अहकाम लती सदरत मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तवन फ़ी वाक़ियतिन औ क़दान फ़ी ख़ुसूमतिन औ जवान सुबार। और ऐसे भी हमको मालूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौर में ये मुकव्वन कैसे था कि या तो कुरान में आया होगा, या तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी फतवा में एक कोई फतवा सादिर किए होंगे, या किसी भी झगड़ा में कोई फ़ैसला किए होंगे, या किसी सवाल का जवाब दिए होंगे,
फ़कानत मजमूअतुल अहकामुल फ़िक़हिय्या फ़ी तअव्वुल मुकव्विनत मिन अहकामिल्लाहि व रसूलिहि व मस्दरुल कुरान व सुन्ना। इसीलिए तो सबसे पहले जो फ़िक़्ह जो है, अहकाम फ़िक़्ह जो है मुकव्वन था, एक लागू शुदा था। क्यों? क्योंकि उस वक्त अल्लाह के अहकाम से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम से, और उसका मस्दर, उसका सोर्सेस जो था कुरान और सुन्ना था। वफ़ी अहदिस सहाबा, और सहाबा के दौर में, फ़ी अहदिस सहाबा वाजहतुम वाक़ाइउन, बहुत से वाक़या जो है फेस हुए, बहुत से वाक़या का मुकाबला करने पड़ा। व तरअत लहुम तवारी, उनके ऊपर बहुत से मसाइल दरपेश हुए। तरअत माना दरपेश हुए, लहुम तवारीन मतलब मुसीबतें, या मतलब मसाइल। लम तुवाजिहिल मुस्लिमीना, जो मुसलमान कभी भी क्या उसको फेस नहीं किए थे। वलम तत्र लहुम, और उनके ऊपर नहीं आया था। फ़ी अहद रसूल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ऐसे वाक़या नहीं आए थे। फ़ज्तहद फ़ीहा अहलुल इज्तिहाद, तो उसमें अहले इज्तिहाद वाले ने कोशिश किया। मिनहुम, उन लोगों में से जो सहाबा इकराम थे। व क़दौ व अफ़्तौ, उन्होंने उसके मुताबिक फ़ैसला किया, उनके मुताबिक फ़तवा दिया। व शरअउ, उसके मुताबिक शरीयत में लागू किया। व अज़ाफ़ु इलल मजमुअतिल ऊला, और पहले जो पता है फर्स्ट मजमुआ की तरफ उन्होंने उस चीज़ को इजाफ़ा किया। इद्दा अहकाम, बहुत से अहकाम। इस्तंबतुहा, जिसको उन्होंने निकाला था भी इज्तिहादीम, उनकी इज्तिहाद की वजह से। फ़कानत मजमुअतुल अहकामुल फ़िक़हिय्या, तो ये अहकाम फ़िक़हिय्या का जो कलेक्शन था, डाटा कलेक्शन था। फ़ी तौर तानी, दूसरे तौर में। पहले तौर में तो कोई डाउट ही नहीं था, क्योंकि उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। मुकव्विनतुन मिन अहकामिल्लाहि, ये अब दूसरे तौर में कैसे हो गया? मुकव्विनतुन मिन अहकामिल्लाहि व रसूलिहि व फ़तावा सहाबा व अक़दियतिन, कुरान अल्लाह के अहकाम से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से, और सहाबा इकराम के फतवा और उनके फ़ैसला से। व मसादिर हुआ, और उसका मसदर सोर्स क्या हो गया? कुरान हो गया, व सुन्ना हो गया, व इज्तिहादुस सहाबा हो गया। व फ़ी हादैन तौरैन, ये दो तौर में, फ़ी हादैन तौरैन लम तुदव्विन अहादिल अहकाम, ये अहकाम को एक तदवीन नहीं दिया गया था। एक मतलब एक पूरा जैसे फ़िक़्ह के नाम, मतलब एक तदवीन दौर पे नहीं दिया था। वलम तुशर, और उस पर कोई शरीयत भी नहीं की थी। अहकामुल लिवक़ाइक फ़र्दिया, बलकानल अहकाम फ़ीमा हदस फ़ेरुन मिन वक़ा वमा वक़ा मिनल हवादिस, जब जब कोई एक फ़ेल वाक़ होता था उसके मुताबिक ऐसे फतवा दे देते। वलम ताख़ुज़ हादिल अहकाम सबक़तुन, और ये अहकाम जो कोई एक रंग नहीं लिया अमली, या कोई अमली रंग नहीं लिया। बलकानत मुजर्रदन हावल अलम तुसम्मा हादिल मजमुआ इल्मुल फ़िक़्ह वलम युसम्मी रिजालुन मिन सहाबातिल फ़ुक़हा, इसीलिए ना तो इस मजमुआ को फ़िक़्ह का नाम दिया इल्मुल फ़िक़्ह, ना ही सहाबा इकराम को फ़ुक़हा या मुफ्ती का नाम दिया। बल्कि एक जब जब वाक़या होता था, सहाबा इकराम अपने इज्तिहाद के मुताबिक उसको क्या कर लेते थे? मतलब अपने अंडर में कर लेते थे। देखिए, अब वो सिर्फ एक बार सुनने से काफ़ी होगा। देखिए, वफ़ी अहद ताबीन, अब ताबीन व ताबीन व अइम्मतुल मुज्तहिदीन व बितक़रीबिल अरकरनान अल हिजरियान असानी व सालिस, जो कि दूसरे 2 हिजरी के करीब में है। तो इत्तसात अद-दौलतुल इस्लामी और दखल फिल इस्लामी कसीरुन मिनल गैर, इसलिए इस्लाम का जो रुका है, इस्लाम का जो बाउंड्री से बहुत ज़्यादा फैल गया, और बहुत से गैर अरब जो इस्लाम में दाखिल होंगे। वह वाजहतुल मुस्लिमीन तवारी, इसलिए मुसलमान को बहुत से मसाइल पेश होने लगे। वह मशाकिल, बहुत से मुश्किलात, व बहुत व नज़रियात व हरकत इमरानिया, बहुत से बहूस हो गया, नज़रिया हो गया, अलग अलग नज़रिया, और जो पॉपुलेशन का जो हरकत है वो भी ज़्यादा हो गई। वो अक़लिया, अक़ल का जो भी सोर्सेज है वो भी, मतलब अक़ल में अलग अलग ख़याल आने लगे। हमलतुल मुज्तहिदीन, तो मुज्तहिदीन लोग जो है कोशिश किए अलसाअती, फैलाने पर, फिल इज्तिहादी, अपनी इज्तिहाद के वजह से, और तशरीह और शरीयत को लिकसीर मिनल वक़ाय, बहुत से वक़ाय में उन्होंने अपने इज्तिहाद के मुताबिक फतवा लागू किया। व फ़तहत लहुम अब्वाबुन, उनके लिए खोल दिए अब्वाब मिनल बहथ व नदर, बहथ और नदर का। फ़त्तसा मैदान व तशरीह, इसलिए तशरीह का जो मैदान है वो वसी हो गया। लिल अहकामिल फ़िक़हिय्या व शरअत व शरीयत अहकामुन कसीरा, इसी तरह बहुत से अहकाम भी लागू शुरू हो गया। ले वक़ाइन फ़र्दिया, जो भी वाक़या होता था। व उज़ीफ़त इलल मजमुअतैन साबिक़तैन, इसलिए 2 ऊपर का जो पहला मजमुआ है उसके तरफ मिला दिया। वह अहकामुन कसीरा फ़कानत मजमुअतुल अहकामुल फ़िक़हिय्या, तो अब फ़िक़ही अहकाम का जो मजमुआ था वो हो गया। तो फिर तौर सालिस, उसके दूसरे तौर में मुकव्विनतुन मिन अहकामिल्लाहि व रसूलिहि व फ़तावा सहाबी व अक़दियतिहिम व फ़तावल मुज्तहिदीन व इस्तिंबातिहिम व मसादिरुल कुरान व सुन्ना व इज्तिहादुस सहाबा वल अइम्मतुल मुज्तहिदीन। हो गया ना, तो कुरान हो गया, सुन्ना हो गया, सहाबा का इज्तिहाद हो गया, और मुज्तहिदीन का इज्तिहाद हो। फ़ी हाज़ल अहदी
बुदिया बे तदवीनी, हाँ तो इस दौर में तदवीन का काम शुरू हो गया। हादिल आका माल बदई बे तदवीन सुन्नत के तदवीन के साथ। वस्तबगतिल अहकाम बिसबगतिल अमरिया, इसी तरह अहकाम जो यहाँ रंग लेना, अमरी रंग लेना क्या हो गया, शुरू हो गया। लिअन्ना दुकिरत मा अदिल्ला, तो उसके साथ दलील को जिक्र किया। व इलल को, वल उसूल आम, उसूल आम को अल्लती ततफर्राना, जिससे फ़रा निकलता है। वो सुम्मिया रिजालुल फ़ुक़हा, इसलिए यहाँ पर फ़ुक़हा नाम दिया गया, रिजाल को रिजालुल फ़ुक़हा नाम दिया गया, उसके साथ इल्म फ़िक़्ह के भी नाम दिया गया। वमन अव्वल मन दव्वन फ़ीमा वसर इलैना, और सबसे पहले जो इसको तदवीन किया, जो हमारे पास पहुंचा है, वो कौन है, मुअत्ता अल इमाम मालिक बिन अनस, हज़रत मालिक बिन अनस का मुअत्ता। फ़इन्नहु जमा फ़िया बिना और अतल बिल खलीफ़ा, उन्होंने खलीफ़ा अल मंसूर के डिमांड पे उन्होंने इसको जमा किया था। मा सहा इंदहु मिन सुन्ना, जो सही सुन्नत से जो भी सही है उसको। व मिन फ़ताव सहाब व ताबीन व ताबीन, सहाबा इकराम का फ़तवा, ताबीन का फ़तवा, तब ताबीन का फ़तवा उन्होंने जमा किया। फ़कान किताब हदीसिन व फ़िक़्हिन, तो ये हदीस और फ़िक़्ह के किताब वह असास फ़िक़्हिल हिजाज़िन, जो हिजाज़िन का क्या है गया, फ़िक़्ह का बुनियाद हो गया। सुम्मा दवन अल इमाम अबू यूसुफ़, फिर इमाम अबू यूसुफ़ ने उसको तदवीन किया। सुम्मा दवन अल इमाम अबू यूसुफ़ साहिब अबू हनीफ़ा इद्द किताबिन फ़िल फ़िक़्हि असासुल फ़िक़्हिल इराक़ी, जो कि इराक़ी फ़िक़्ह का क्या हो गया, बुनियाद हो गया। व दवन अल इमाम मोहम्मद बिन हसन साहिब अबू हनीफ़ा कुतुब ज़ाहिर रिवाया, ज़ाहिर रिवाया किताब को उन्होंने तदवीन किया। जो 6 है असित्ता अल्लती जमा अल हाकिम शहीद, जिसको हाकिम शहीद ने जमा किया। फ़ी किताब अल काफ़ी व शरह, और उसको शरह किया सरखसी फ़ी किताब अल मबसूत, वही मर्जुल फ़िक़्हिल मज़हबिल हनफ़ी, जो कि हनफ़ी मज़हब का मर्जा। व उमली अल इमाम मोहम्मद बिन इदरीस अल इमाम मोहम्मद बिन इदरीस, यानी इमाम शाफ़ी ने इमला किया मिस्री किताब ही, अपनी किताब को अमल इमाम, उमली ने सूरह अमल वह इमादुल फ़िक़्हिल मज़हबी शाफ़ी, जो कि इमाम शाफ़ी का। ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है अगले क्लास में देंगे, बहुत ज़्यादा ही हो गया। ओके, अस्सलाम वालेकुम।